Now we are moving gradually to the practical aspects of GTO test. Okay, and the most important test amongst all those 9 subtests in GTO is progressive group task. Okay, progressive group task. Why? I shall explain when I cover PGT in detail. But before I cover that, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए आपको कुछ एक बेसिक एस्पेक्ट्स क्लैरिफाई कर दूं, ताकि जब हम PGT के बारे में बात करें या आने वाले और बाकी GTO टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको उस वो क्लैरिटी दिमाग के अंदर बनी रहे. So with that aim, today I am going to talk about 2 important things. Okay, 2 things. One is certain rules. Okay, all GTO outdoor tests, in certain rules are to be followed, and certain practical skills that would become very handy for you to attempt these GTO tasks. Okay, and do say much better. Okay, so one of the rules that is followed in all GTO test is group rule. What does it mean? कि ग्रुप पूरा ही उस टास्क को कंप्लीट करना चाहिए, तभी वो टास्क कंप्लीट माना जाएगा. अगर एक मेंबर भी ग्रुप का पीछे छूट जाता है तो वो टास्क को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. So that is the group rule, right? I'll try and explain with the help of a diagram. Let's see this here. Okay, what you see is the entire group. Okay, this is the start point, and maybe somewhere here you will find the finish point. Okay, after having crossed this. So till such time the last member of the group gets over this side, okay, task will not be considered as having been completed. So that is one. Okay, और अगर जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 3 स्टेजेस में करना पड़ता है, जब तक आप स्टेज 1 ऑब्स्टिकल्स खत्म नहीं कर लेते हो, आप एज ए ग्रुप आप दूसरे में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. सो आई होप दैट इज क्लियर. दैट इज व्हाट मीन्स. इट मीन्स ग्रुप रूल. ओके, सेकेंड इज रूल ऑफ डिस्टेंस. ओके, रूल ऑफ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस जो 4 फीट से ज्यादा है, उसको कोई भी मेंबर जंप नहीं कर सकता है, उसको किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करके ही क्रॉस किया जा सकता है. सो दैट इज द रूल ऑफ डिस्टेंस. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस लाइक दिस. Say from here, if you got to come here, this distance is more than 4 feet, so it can't happen. आप बड़े लॉन्ग जंप के चैंपियन भी हो सकते हो, but you will not be allowed to jump from here and come to this place. Okay, you got to use some resource, बल्ला, फट्टी, रोप, कुछ भी है, उसका इस्तेमाल करके ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. So that is what it means, 4 feet rule. और अगर ये 4 feet के अंदर है, सपोजिंग दिस यहाँ तक आ गए आप ऑब्स्टिकल तक, एंड ये डिस्टेंस 4 feet ही है, तो देन यू कैन फ्रॉम हियर ए मेंबर कैन get to this side. Okay, using this because it is less than 4 feet. So that is the rule of distance. All right. Now coming to rule of infinity. Okay, what it means, I'll again explain with the help of a diagram. Okay, see this diagram. This is the start point, this is the finish point. So what this rule of infinity signifies or tells you कि ये this extends to infinity. Okay, ये यहाँ पर भी infinity तक extend करेगा, इस तरफ भी करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा. Okay, all right. So ये नहीं है कि कोई ग्रुप मेंबर बोले भाई ये ऑब्स्टिकल तो इधर खत्म हो गया, मैं साइड से जाता हुआ और फिनिश लाइन पे चला जाऊँ. It doesn't happen that way, and that is what is called rule of infinity. All right. Then back to rule of rigidity. आपको जैसा पता है कि GTO टास्क करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं. मेनली फट्टा होता है, वुडन प्लैंक, बल्ली होती है, राइट, एंड रोप दिया जाता है. जनरली दीज आर द additional resources that are available to you while you're performing any of these tasks. So rule of rigidity says that फट्टा और बल्ली को आप रस्सी से बांध नहीं सकते, यानी 2 जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स है उसको रस्सी से आप नहीं बांध सकते. रिसोर्सेज है जो आपके, हाँ, आप जो स्ट्रक्चर है उसके साथ रस्सी का इस्तेमाल करते हुए प्लैंक को, बल्ली को जैसा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ये इसकी लेंथ आप अगर चाहें कि इस फट्टे के आगे इस बल्ली को लंबाई में लगा के और यहाँ पर रस्सी से बांध दें, दैट इज नॉट परमिटेड, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रूल ऑफ रिजिडिटी. ओके, एंड फोर्थ रूल इज रूल ऑफ कलर. Okay, again very important for all of you to understand. What it means is, again
सिंपली स्पीकिंग सारे ऑब्स्टिकल्स में कुछ कलर मार्क किया जाता है, एंड दे आर दैट दिस कलर इज जनरली वाइट, एज यू कैन सी इट इज जनरली ब्लू, एंड एट प्लेसेस इट इज ऑल्सो रेड। ओके, कोई भी वाइट कलर वहाँ पर, जैसे ये वाइट यहाँ दिखाया गया, यहाँ पर बंदा भी खड़ा हो सकता है, कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है, और उसके ऊपर आप चाहें तो आपका लोड या कोई जो मटेरियल है दिया गया आपको, उसको आप रख सकता है। ओके, ब्लू सिग्निफाइज कि यहाँ पर आप खुद खड़ा हो सकता है, पर आपका जो हेल्पिंग मटेरियल है वो यहाँ पर टच नहीं कर सकता है। एंड जो रेड है उसके ऊपर ना आप टच कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, और ना ही आपका जो हेल्पिंग मटेरियल है वो टच कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द rules, and now I am going to give you certain practical skill sets. Okay, rather I want कि आप इनको skill sets को अपने टाइम में enhance करें, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें, और I can guarantee you, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इन चीज़ों को आप अगर महारत हासिल कर लेते हैं, ओके, और इस तरीके का नज़रिया पैदा कर सकते हैं, तो definitely you will be doing better in your all GTO tasks. Okay, so I'll cover one by one, very simple things but very important. Okay, first is various knots. आपको रोप दिया जाता है ऐसे, तो उससे किस तरीके के नॉट्स बना सकते हैं आप, तरह तरह के नॉट्स, और उन नॉट्स को किस समय जगह इस्तेमाल करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, so that you can learn. Okay, lot of material is available on internet, even you can see on YouTube कि किस तरीके की नॉट्स बना सकते हैं, और उनको आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें। ओके, अगर इस तरीके की नॉट है तो ये कहाँ पर आपको फ़ायदा देगी, इस तरीके की नॉट कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ओके, ताकि आपको जो रिजल्ट आप चाहते हो वो हासिल हो सके। तो मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहा हूँ, बट आई विल गिव यू दिस एज ए होम वर्क टू ऑल ऑफ यू। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस इट। ओके, लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब, study it from internet, and do it physically at your home. Get hold of a rope, get hold of a little balli and fata, okay, and try and use these different knots using any structure you feel like. Okay, then is second, structure analysis. Now this is the skill you must develop. एक आपको एक नजरिया रखना पड़ेगा कि आपको जब भी किसी टास्क को करने निकलते हैं, देखते हैं, तो यू शुड बी एबल टू कैरी आउट ए प्रॉपर स्ट्रक्चर एनालिसिस। ओके, जो भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर हैं, पीजीटी के अंदर हैं, कमांड टास्क के अंदर हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के अंदर हैं, यू शुड हैव दिस आई फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस। ओके, उसमें क्या खास चीज़ें देखने के बोली होती, लुक फॉर सम स्पेशल फीचर्स, समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन, okay, something which is unique in that structure which you can look at it, like कोई कट है, कोई गैप है बीच में, ओके, कोई लूप कहीं बना हुआ है ड्रम के ऊपर, या इवन स्ट्रक्चर के ऊपर लूप लटक रहे हैं, ओके, रॉड है उसके चारों तरफ कहीं रिंग है, अगर कोई प्रोजेक्शन है, कोई प्रोट्रूशन है कहीं पर, सो इस तरीके का कोई जो अनयूजुअल चीज़ होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, यू शुड डेवलप दैट आर्ट to do the analysis. Okay, for example, like I'll just show you. Okay, forget the bully part of it. Okay, this is the structure. Okay, and what it has got is ये यहाँ पर 90 degrees के अंदर यहाँ एक extension है. Okay, so this has been designed. This is not this stands out in this structure. You should be able to notice that, because that has been made with some view. Whoever has designed this obstacle, they are made with a purpose. Similarly, यहाँ पर ये जैसे कोई पत्थर है लगा हुआ है चौकोर, उसका कलर भी वाइट है। ओके, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखेंगे तो मे बी आपके दिमाग में जैसे ये बल्ली लगा हुआ है, ये आइडिया आ जाएगा कि इस बल्ली को लगा के कुछ टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, सिमिलरली बगल में देखिए ये स्ट्रक्चर, ओके, ये स्ट्रक्चर है और इसके यहाँ पर भी प्रोट्रूशन है, उसका भी कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ऑलराइट, उसके साथ में ही ये वाइट पत्थर लगा हुआ है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या टास्क कंप्लीट करने के लिए। ओके, सिमिलरली इफ यू फोकस दिस साइड, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, फॉरगेट अगेन दिस बल्ली एंड फटा, एज्यूम कि वो वहाँ पर नहीं है, केवल ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर एनालिसिस करने का ध्यान देते हैं, अगर आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करते हैं, देन यू विल फाइंड कि ये देखो, ये यहाँ से इस
एल शेप के इसमें से हुक्स निकले हुए हैं दोनों तरफ, तो डेफिनेटली वो किसी पर्पस से बनाए गए होंगे। कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आइडियाज आपको आएंगे अगर आप ये स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, सिमिलरली लुक एट दिस, यहाँ पर ओके एक ये पाइप आ रहा है और जो यहाँ तक आके खत्म हो रहा है। ओके, टेक नोट ऑफ दैट, मे बी कि उसको भी किसी पर्पस से बनाया गया है। सो दिस इज व्हाट आई विश टू से। मैं इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि मैं इस स्ट्रक्चर एनालिसिस को कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ और ज़्यादा डिटेल में आपको साथ कवर करूँ। कैंटिलीवर प्रिंसिपल। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटायर जीटीओ ऑब्स्टिकल हैंडलिंग। ओके, यू मस्ट नो द प्रिंसिपल ऑफ कैंटिलीवर। ओके, फिजिक्स का सीधा सीधा सा प्रिंसिपल है, उसको लर्न करें और उसको अप्लाई करें सॉल्यूशंस बनाते समय यूजिंग जो भी एक्सेसरीज आपको दिया है। ओके, जो भी हेल्पिंग मटेरियल आपको दिया हुआ है और जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके राइट, नटशेल व्हाट आई कैन टेल यू इज जस्ट दिस। ओके, कोई भी ये जैसे फट्टा है आपका, बल्ली है, कोई भी है, तो एक एंड को अगर फिक्स कर लें आप, ठीक है, और बीच में किसी चीज से उसको सपोर्ट मिल जाए, तो इसका इस्तेमाल करते हुए कोई लोड आदमी भी इसके ऊपर चल के इस एंड तक जा सकता है। सो दिस इज द फिक्स्ड एंड, दिस इज फ्री एंड, जहां जिसको किस तरीके से आप उसको रिजिड बना सकते हो एक एंड को, दैट वी शुड कॉल एफर्ट। कैसे एफर्ट करके इसको फिक्स किया जा सकता है। देन आइडेंटिफाई द फलक्रम, अगर बीच में कोई स्ट्रक्चर है जो फलक्रम की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपके पास रोप है या बल्ली है, उसको क्या फलक्रम की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इफ यू डू दैट देन यू शुड बी एबल टू क्रॉस दैट गैप, जो कि मोर देन 4 फीट हो सकता है, जिसको कि आप डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। सो इन प्रिंसिपल, इन नटशेल, दिस इज व्हाट इट इज, कैंटिलीवर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, very important for tackling all the GTO obstacles. Okay, more about it in my next video. Okay. And I wish to explain one more aspect as part of helping skills. Never cease to explore solutions. Never. आप ये मानकर चलिए कि हर एक ऑब्स्टिकल जो वहाँ पर बनाया गया है, चाहे वो PGT हो, HGT हो, FGT हो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो, कमांड टास्क हो, anything that has been designed ओके विथ लॉट ऑफ थॉट्स हैविंग गॉन इनटू इट। और जिसने भी डिज़ाइन किया होता है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि उस जो भी प्रॉब्लम आप उसके अंदर दिखा रहे हो ऑब्स्टिकल्स के अंदर, उसका मिनिमम 3 सॉल्यूशंस होना जरूरी है। नहीं होगा तो वो ऑब्स्टिकल SSB में मंजूरी नहीं होगा लगाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम GTO या ऑब्स्टिकल में आपको दिखाई दी जा रही है और जो आपने अचीव करना है, उसको अचीव करने के मिनिमम 3 सॉल्यूशंस अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो डिज़ाइन सक्सेसफुल है, तभी वो डिज़ाइन वहाँ पर आई है। तो ये आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कितनी भी बढ़ती जाए, देयर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन अवेलेबल। तो उस माइंड सेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, उस पैराडाइम के साथ आपको आगे बढ़ना है कि देयर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन अवेलेबल। सो नेवर गेट डिसहार्टेंड, नॉर शुड यू अलाउ द ग्रुप ऑल्सो टू गेट डिसहार्टेंड। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपके काम करते समय दिस शुड बी वेरी मच ऑब्वियस टू एनीबडी कि यू आर ए पर्सन हु डिस्पाइट ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, डिस्पाइट ऑफ लिटिल मोर say problems, okay, you are not one who is going to give up. You keep looking for solutions. If solution comes to you, fine. If it doesn't come, there are other group members who can suggest something, but the approach should be that. Okay, so this is today what I thought I should cover with you. All right, and now in my next video, this I am giving it as a filler. Okay, having covered something very important in my last video, that is crux, very important. Please go through it, understand its importance, imbibe it. Okay, all right, because in a nutshell that summarizes entire GTO process. Okay, all right. So but practical aspects, these are some of the fillers which I thought would help you when I cover PGT, the most important test. Okay, some more details. Till then, all the very best. Thank you.